अस्सलाम वालेकुम। म्यूट है, वो सब म्यूट है, सब म्यूट है। आप स्टार्ट करें। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली इल्ला अन तकूना बितिजारतिन अन तराद मिनकुम ला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। ए ईमान वालो, आप अपने आपस के माल पर नाजायज तरीक से मत खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से खरीदो फरोख्त करो और अपने आप को कत्ल ना करो। यकीनन अल्लाह तुम पर निहायत मेहरबान है। Assalamu alaikum and welcome to all participants, and thank you for joining us in today's corporate briefing session on financial performance of the company for the year 2023 and 24. Now first I would like to introduce FSM team here. Mr. Ahmed Ali Bawani, who leads the company, CEO of the company, myself, Mohammed Ayub, CFO of the company, Mr. Atif, Senior Finance Manager, and Mr. Azaz from IT Department. First, we brief about the performance of the company, then house will be open for your queries. I would like to request all participants, please note down all your queries while briefing session. These will be addressed in question answer session. Now let's start the briefing session. Second question. This slide shows table of contents. Next page. We're doing about this illustrative. I think it's Company profile. Very short company profile. The company incorporated 1981 and started its first commercial production season 1983-84 with 2000 TCD capacity. Now it reached around above 12,000 TCD. Mill located Selbirkio, Tando Mohammad Adam Khan, Head Office, Karachi, PCHS. Board of Director, Mr. Omar Amir Bawani, Chairman, Ahmed Ali Bawani, CEO of the company, Hamza Bawani, Bilal Umar Bawani, Mohammad Altamash Bawani, Ahmed Ghulam Hussain, Irfan Zakaria, Khurram Akhtar, and Madam Tasneem Yusuf. Auditor, Rahman Sarfraz, Rahim Iqbal Rafiq. Besides sugar business, the company also have a joint venture project in name of Unicorn Limited, which produce ethanol and export it worldwide. During the year 2023, the Unicorn acquired all assets of Papua Sugar Mill Limited and fully operated its season in 2023-24 in province of Punjab. We have a halal certificate from Sana Halal Association and crediting from JS Credit. Next slide. Recording in progress. There is milestone of the company showing screen. Next. Global sugar production and consumption. Brazil is top of in production of sugar and second India, and Pakistan is ranked 8th number. Next. There is 90 sugar mills in the country and 17 in operation. District sugar mills 28, in province of Punjab 46, operated 40. In Sindh there are 38 mills, operated 32, and KPT 6 and same operated 6. Sugar industry overview of season 2023-24. 7.9 ton produced in 2021-22, 6.7 in 22-23, and 6.8 2023 and 24. Next. Sugar industry overview of season 2023-24.
Minimum support price was fixed 425, which is 123, higher from last season. Policy rate also increased to 22%, which caused a significant increase in cost component of sugar, because both are main component of the sugar cost. The province of Sindh produced 2.2 million tons refined sugar against 1.7 million tons produced in the previous season, up by 29%. There was 1.1 billion tons in the beginning of the season. The country produced 6.8 million tons, aggregated 7.9 million tons available sugar in the country, which was more than its total domestic consumption. Because this industry demanded a permission export of surplus sugar, however, the government delayed the decision and allowed only 750,000 tons export in the month of July, August, and onward, which is too late. Sindh quota was 2 to 5,000 tons. Under the Finance Act, the government also imposed federal excise duty at the rate of 50 rupees and 2% withholding tax on unregistered person, which also caused depressed selling price. Therefore, sugar price remained depressed throughout the year, resulting losses to the industry. Price and demand also remained depressed during the last season. Next. There is financial highlights on the screen. Next. Next. Okay. We incurred huge losses in 2023-24 financial year because the main factors here. Number one, high inflation. High inflation caused commodity price, our raw material price, and overhead, and also finance costs increased significantly due to rising in cargo rate up to 22%. Both are main cost component of the sugar production. Also, government inconsistent government policy affected selling price of in domestic market, grey market activity, and effective monitoring of TN system. And we also caused financial cost due to pending subsidy from government and stack up fund from utility store. Next. There is also financial highlight for the first quarter ended December 2024. Now, strategical operation and development. That one, right? The company is in process to install further 600 kilowatt solar power along with 248 kilowatt already installed. The total capacity will be 848 kilowatt from the upcoming season. To improve the working capital requirements of the company, FSML has also issued 58% guide shares at the rate of 35 rupees, which includes premium of rupees 25, amounts to rupees 507 billion. Now, pending subsidy, which was discussed earlier, was released during the quarter and amounting to rupees 300 million. And also, utility stores corporation funds which were struck up also been released and around rupees 400 million. Now, our earnest money is pending, which will be released inshallah soon. Season 24-25 overview. As per IMF conditions, the provincial government has not fixed minimum sugar price this year, and the industry is pursuing the government to completely deregulate the sugar sector. Yield per acre and rate of recovery from cane is lower this year, and anticipated sugar production is in 24-25 will be significantly lower in comparison from last year. Actual production up to rupees 15 Feb is 4.79 million tons in the country, which is approximately 10 to 12% lower in comparison with last year. We started crushing on November 18, 2024, and produced up to 51,000 tons by crushing 543,000 tons cane
with average recovery of 9.7 up to first fortnight of February 2025. There are some good positive outcomes for the season, which are due to issuance of right issue, we feel ease in cash flow constraint, and also the release of freight subsidy and overdue amount from utility stores will also provide relief for the liquidity of the company. Policy rate has also been declined, and we are optimistic that our finance costs will be reduced by huge amount. Further, solar power system will also reduce our cost of production, and we also VKT and FFE was installed last year, and we are saving a significant amount of bagasse. And also the bagasse selling price has also been doubled, so we are expecting good contribution margin from the bagasse. TNT system will hopefully reduce the movement in the grey market activity in the country, and we are also optimistic that the unregulated sugar movement will be reduced. We are open for question and answers. Please raise your hands so that you may be asked. Let's move forward to question answers session. In house is open for your valuable comments. Please first introduce yourself and then ask concise and clear question. Let's start. First is Ms. Rashida Fazal. अस्सलाम वालेकुम। सर, आप लोगों ने अभी ये स्लाइड में लिखा है कि 15 तारीख तक की प्रोडक्शन हुई है कोई अराउंड 4.8 मिलियन। तो पंजाब की कुछ मिल्स बंद भी होना शुरू हो गई हैं, 20, 22, 25 तारीख से बंद भी हो रही हैं। तो सर, आप लोगों को क्या लगता है कि आखिरी 15-20 दिन में कितनी चीनी प्रोड्यूस हो सकती है? क्योंकि अगर 5-7 लाख टन ही प्रोड्यूस होती है तो टोटल प्रोडक्शन होगी 5.2-5.3 मिलियन टन। क्या ये अजम्पशन सही है कि इतनी प्रोडक्शन होगी? और अगर इतनी होगी तो इससे अगर कोई मुल्क में शॉर्टेज होती है तो आप लोगों का प्राइस पे क्या आउटलुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिदा फाजिल साहब, आप पूछना चाह रहे हैं कि पंजाब की क्या प्रोडक्शन होगी? आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट द ओवरऑल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान व्हाट वी सी एंड अप? जी, आप म्यूट पर हो मैडम राशिदा फाजिल। सर, मैं पूरे पाकिस्तान की प्रोडक्शन समझना चाह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान की जहां तक प्रोडक्शन है, आई बिलीव दैट द एंड फिगर विल बी समवेयर अराउंड 6 मिलियन टन। 4.7 मिलियन टन जो आप यहाँ देख रहे हो वो है एज ऑफ 15 फरवरी। ठीक है, अब डेफिनेटली कुछ मिलें सिंध में भी बंद हो गई हैं अभी एज वी स्पीक टुडे, 1-2 मिलें पंजाब में बंद होने जा रही हैं। तो जो लास्ट 10 डेज है उसमें पंजाब की मिलें तो फुल क्रशिंग कर रही थी। तो आई बिलीव कि by the time the campaign ends, Pakistan will end up with around 6 million tons of sugar, maybe 6.1 also. ठीक है ना? अच्छा सर, ये जो फरवरी के पहले 15 दिन है, अगर हम इसकी प्रोडक्शन देखें तो ये कोई बन रहे थे पंजाब सिंध में 50-60 हजार टन रोज के। राइट। तो क्या फरवरी के लास्ट 15 दिन में इससे ज्यादा प्रोडक्शन होगी? क्योंकि 6 तक पहुंचने के लिए तो मतलब एक 1.3 मिलियन टन बनाने होंगे ना। तो सर, ये कुछ कैलकुलेशन नहीं बैठ रही है 6 तक पहुंचने की। आप जनवरी 30 को क्या प्रोडक्शन थी? जनवरी 30 को आप लोगों के पास ज्यादा नंबर। एक सेकंड। व्हाट वाज द 4.7 माइनस कितना प्रोडक्शन आई थी? 9 लाख टन। ये आइए 973 प्रोडक्शन आई है। Okay, nearly 1 million ton was produced in the first 15 days of February. ठीक है ना? Okay. ठीक है ना? What we believe that there will be certain mills that will go into March also, and a few of the mills, maybe a handful, will also see 10th of March. So up until the 10th of March, I believe that instead of 4.7, हम इसके अंदर 11-12 लाख टन मुझे लग रहा है, क्योंकि ये हाईएस्ट रिकवरी का टाइम है जो लास्ट लेग ऑफ फरवरी है। उसके अंदर रिकवरी भी हर मिल की एट इट्स पीक होती है, और गन्ना भी जो है वो आपको फुल कैपेसिटी में पंजाब को मिल रहा है। तो आप 6 मिलियन टन बना लेंगे, और उसके बाद फिर 1 लाख टन तकरीबन आपका बीट से आएगा, जो कि मार्च से शुरू होता है और फिर मई के एंड तक चलता है। तो वो भी अगर आप ऐड कर लें तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग 6.1 मिलियन टन इज माय एस्टिमेट।
अच्छा सर, अगर कुछ डिमांड पे कुछ वो दे दें कि डिमांड कितनी होती है मुल्क की, और फिर आपको शुगर प्राइसेस का क्या ट्रेंड लगता है? डिमांड जो है वो, देखिए पाकिस्तान के शुगर की जो डिमांड है वो जब से ट्रैक एंड ट्रेस लगा है तो इट हैज बिकम मोर ऑफ एन एक्यूरेट फिगर। लास्ट ईयर जो कंफर्म्ड जो लिफ्टिंग थी आफ्टर दे हैड क्लैम्प डाउन ऑन द अफगानिस्तान बॉर्डर, तो एवरीथिंग हैज बीन अकाउंटेड फॉर। तो we have seen a demand of 6.4 million tons of sugar lifting last year. So keeping that in mind, I think 6.4, 6.5 million ton की production is what is expected to be again this year. तो आपके पास कैरी ओवर स्टॉक 4 लाख टन का था, अगर 6.1 मिलियन टन चीनी बनती है जो कि लग रहा है बन जाएगी, तो पाकिस्तान विल हैव एग्जैक्टली अ वेरी बैलेंस्ड नंबर। 6.5 मिलियन टन डिमांड के सामने 6.5 मिलियन टन की आपके पास प्रोडक्शन अवेलेबल होगी अलॉन्ग विद ओपनिंग स्टॉक। तो ये अगर आपकी सिचुएशन है तो आई गेस प्राइसेस विल improve inshallah, and prices have shown improvement over the last 1 month also. We started the season at about 118 rupees, 117 rupees, and today the rates are about 150. But also the cane price have gone up phenomenally high. We started the season at 400 rupees mill punch ka rate, and until 3 days back, the prices of sugarcane had gone up to 650 rupees mill punch. So you can see that, with the improvement in sugar price and with the lower trend in recovery and also yield, the sugar mills have passed on a lot of the buck to the farmers already. So prices अभी जो 150 रुपए में, maybe they'll go up by another 50-20 rupees, inshallah. I hope so. So that is what I see on the outset. But I don't see कि भाई prices आपको गवर्नमेंट को 180-90 होने देगी। सर, ये जो 650 पे जब आप लोग खरीद रहे होते हैं, तो जैसे अगर हम अभी भी प्राइस ले लें या हम थोड़ी सी यहाँ से बढ़ा भी लें, तो जो 650 पे आप लोग खरीदेंगे वो तो ब्रेक इवन होता हुआ नहीं लग रहा है करंट शुगर प्राइसेस एटलीस्ट। तो ये व्हाट्स द स्ट्रेटजी? नो वे क्लोज टू इट। देखिए, जब आपका ये जो डेली फिगर्स जो आपके केन के होते हैं, इस तरीके से नहीं होता कि आप बोलो कि आज गन्ने का भाव ज्यादा है, आज हम चीनी बना रहे हैं 170 की और 150 की बाजार का चीनी हम गन्ना ना लें, क्योंकि यू हैव टू टेक अ पोजीशन, राइट? आइदर यू क्रश और यू डोंट क्रश, ठीक है, देन यू एवरेज आउट फॉर द सीजन। It is not something that, cane comes not from under the well, वो नहीं है ना कि आप बोलो कि आप डील कर रहे हो तो ह्यूमन से ऑन डे टू डे बेसिस। जमींदार की एक चीज है कि अगर आपने उससे गन्ना लिया, आप बोलो अब मैं आज नहीं लूंगा तो कल किसी और को देगा, फिर परसों आप बोला अभी रेट चीनी के बेहतर हो गया, मुझे वापस दे दो। तो इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। You have to take a position that how much you will crush for the season, what is going to be your average price, what is going to be your transport cost, where are you going to procure from. There are so many permutation combinations that needs to that are in play when you are crushing cane. तो वो देखते हुए अब 650 है, अब then we roll back, जब roll back करते हैं तो then we take the prices down, फिर वो 2 दिन 3 दिन रहता है, फिर वो बढ़ जाता है, because it's a very fluid situation. That's why. Sir, thank you so much for your responses. Really appreciate them. Thank you. Next is Mr. Mukeet Naeem. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर, आपने अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन किया कि एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी की मद में आपको कुछ पैसे मिले हैं, आई बिलीव 304 मिलियन रुपीस। तो उसको Right. थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या थे और कितने टाइम से स्टक हुए थे और अभी आपको रिलीज हुए हैं, और वो कैसे स्टक हुए थे, देखिए उसका ये, भी थोड़ा बैकग्राउंड बता दें। हाँ, ये 5 साल पहले हमने एक्सपोर्ट किया था शुगर, हाँ? 7 साल हो 17-18, ओके, 7 साल पहले हमने जो एक्सपोर्ट शुगर की थी उसके अंदर सिंस गवर्नमेंट ने बहुत लेट डिसीजन लिया था एक्सपोर्ट करने का, उस साल भी हम गवर्नमेंट से पहले कहते रहे कि हम एक्सपोर्ट कर दें, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने वही डिले टैक्टिक्स यूज करके लास्ट मिनट पे लाके जब एक्सपोर्ट दिया तो इंटरनेशनल प्राइस हैड गॉन डाउन to a level where it was not sustainable. So government had then given us a subsidy, which was shared by federal government 50% and provincial government 50%. उसके बाद हमने चीनी एक्सपोर्ट कर दी, हमें शेयर जो फेडरल गवर्नमेंट का था 50% वो तो मिल गया इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोर्ट, लेकिन वो सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना वो हमारा 50% जो है पूरी इंडस्ट्री का रोक दिया था, because there was some sort of a GIT which was being worked on with regards to a particular group of mills who had exported but then had some issues, legal issues. तो उसकी वजह से ये सब्सिडी रुकी थी, उसके ऊपर
कुछ गवर्नमेंट चेक कर रही थी कि एवरीथिंग वाज डन करेक्टली और नॉट, सो इट गॉट स्टोर्ड। फिर उसके बीच में हम यानी कि वी वेंट टू कोर्ट आल्सो, वी गॉट द कोर्ट ऑर्डर, द कोर्ट decided in our favor. When we went to the state government to demand for our subsidy, the government got इलेक्शंस हो गए, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर इलेक्शन लेट हो गए, उसकी वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा लेट हो गई। तकरीबन 6 साल के बाद जाके हमें अब जाके 1 महीने पहले ये सब्सिडी रिलीज हुई है। इस सिलसिले में जितनी सब्सिडी थी उतना तो उसके ऊपर फाइनल चार्ज से ज्यादा लग। इस सिलसिले में हम लोग हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की थी, तो आफ्टर कोर्ट का ऑर्डर भी था, तो इसके बाद खुदा का शुक्र ये सब्सिडी इस साल हमें मिल गई। ठीक है सर, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन किया लास्ट ईयर जो टोटल शुगर की प्रोडक्शन थी 6.84 मिलियन टन थी, इसमें से सिंध की जो प्रोडक्शन थी 2.2 मिलियन टन थी, जो कि अराउंड 32% बनती है। तो राइट, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड जो शुगर केन की अवेलेबिलिटी होती है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द रीजन, यानी कि अगर मैं सिंध में देखूं तो टोटल शुगर केन की जो अवेलेबिलिटी होती है उसका कितना परसेंट सिंध में अवेलेबल होता है और कितना परसेंट पंजाब में अवेलेबल होता है। और ये भी अगर बता दें कि जो अभी शुगर केन की प्राइसेस हायर एंड पे हैं, तो वो सिंध में ज़्यादा हायर एंड पे या पंजाब में, या दोनों में इक्वली मतलब 650 रुपीज़ के लेवल पे पहुंच गई हैं? देखिए अपना सिंध जो प्रोड्यूस करता है लास्ट ईयर 2.2 मिलियन टन, पंजाब ने प्रोड्यूस किया 4.4 मिलियन, राइट। राइट। ठीक है, अब जो परसेंटेज है इसकी आप क्या होगा परसेंटेज आप देख लीजिए। 4.4 माइनस 2.2 डिवाइड बाय, तो बेसिकली अबाउट 50% जो है सिंध ने बनाया है और पंजाब। सो विद आप केपी के माइनस कर तो सिंध का प्रोडक्शन होगा 40% के लगभग ऑफ द एंटायर कंट्रीज प्रोडक्शन, ठीक है ना। और 10% आपका है उसका केपीके का लगभग, और उसके अलावा बाकी पंजाब प्रोड्यूसेस मेजॉरिटी ऑफ शुगर। सर शुगर केन की अवेलेबिलिटी भी इसी तरह परसेंटेजेस में होती यस है जैसे तकरीबन, क्योंकि अभी आप देखेंगे क्योंकि रिकवरी वाइज जो है ना इतना फर्क नहीं रहा। पहले पंजाब के अंदर रिकवरी कम होती थी, ज्यादा गन्ना क्रश होता था, लेसर रिकवरी। सिंध के अंदर कम गन्ना क्रश होता था, हाई रिकवरी। अब सिंध की रिकवरी भी थोड़ी सी नीचे आई है, पंजाब की रिकवरी ऊपर गई है, तो द डिफरेंशियल इज प्रीटी मच वेरी मिनिमल। यू कैन सेफली से 35-36% सिंध का शेयर है, वो 12% आपका केपीके का है, बाकी आपका 56%-50% आपका पंजाब का शेयर। क्योंकि जब हमारे एक्सपोर्ट भी हुए थे तो इसी किस्म के फिगर्स थे जिसके ऊपर हमें एलोकेशन हुई थी पंजाब एक्सपोर्ट के कोटे की। राइट सर, राइट। जैसे सर शुगर केन प्राइसेस आपने बताया 650 चली गई हैं, आपने आई बिलीव सिंध का ही बताया होगा। पंजाब का जी, अगर आप आइडिया दे सकें कि वहाँ भी इसी तरह की प्राइसेस है या वहाँ थोड़े पंजाब कम इज ऑल्सो टच इंक्रीज अबाउट है? 570, 580, 590 रुपीज वहां भी चल रहे हैं, ठीक ओके, है ना। मतलब बट सिंध एवरी से टाइम कम है। this is like a spike. What I'm telling you, these figures are the highest figure that they've gone. Average is not like that, of course. अगर पंजाब के अंदर अभी आपका चल रहा है 580 चल रहा है, तो एवरेज इज समवेयर अराउंड 425, 430, ठीक है ना। सिंध के अंदर भी अगर आप 650 पे गया है तो 600 लोगों की एवरेज नहीं है। लोगों की एवरेज विल बी एनीवेयर बिटवीन 460 रुपीज टू 500 रुपीज, ठीक है ना। So it is a range because आपका transportation plays a very major role. Where the cane is scarcely available, then the mills have to resort to buying cane from far away distances. The transportation cost has gone up phenomenally because of the rise in the petroleum prices, ठीक है ना। तो जो पहले गन्ने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 5-7 रुपए लगते थे, आज उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कम से कम 25 से 30 रुपए लगते हैं। So that also plays a very major part in increasing of cane cost. राइट सर। अच्छा सर, वन लास्ट थिंग, ओवरऑल आपका क्या व्यू है शुगर सेक्टर पे इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी पे, कंसिडरिंग के शुगर केन की प्राइसेस भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे, शुगर प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, मोलेसेस की प्राइसेस भी आई बिलीव 30-32 हज़ार है। तो ओवरऑल पिछले साल से कंपेयर करते हुए आपका क्या आउटलुक बन रहा है इस साल के प्रॉफिट्स पे? देखिए, it all depends on whether the sugar mills have crushed what quantum of cane, at what price, and what recovery, and how much have they sold. Now, there are mills which have run during the season and have sold 60-70% of the stock, so they are not going to be able to take advantage of any higher prices of sugar. ठीक है ना। मोलासेस के प्राइसेस जो है वो जरूर बढ़े हैं, लेकिन वो अभी बढ़े। सीजन की शुरू में तो वो 26,000 रुपए में थे, ठीक है ना। मोस्ट मिल्स डू देयर सौदा फॉरवर्ड, ठीक है, सो दैट दे कैन गेट मनी फ्रॉम द डिस्टिलरीज। लेकिन उनके क्वांटम भी कम बने, अगर उनकी प्रोडक्शन कम हुई तो मोलासेस भी कम बने। तो जैसे अगर हमारा अगर आप ले लास्ट ईयर प्रोड्यूस 37-38,000 टन ऑफ मोलासेस,
Today we only produce about 31,000 tons of molasses. So like, a higher price, what we'll get is a very small percentage of our molasses production. Majority would have been at 27, 28. तो अभी प्राइस बेहतर है, लेकिन अभी कौन सी मिल है जो कि कैपिटलाइज कर सकेगी, उसका वो डिपेंड करता है कि उसने कितना प्रोडक्शन किया है, उसने अगर चीनी रखी है तो उसको फायदा मिलेगा, अगर उसने चीनी बेच दी है और परसेंटेज उसने बेच दी है तो उसके हिसाब से उसके नंबर आएंगे। लेकिन ओवरऑल शुगर इंडस्ट्री लास्ट ईयर से बेहतर करेगी, ठीक है ना। ओवरऑल अगर आप देखो तो शुगर इंडस्ट्री मेजॉरिटी ऑफ देम हैव वन रेड लास्ट ईयर, ठीक है ना। A lot of mills have suffered huge losses. So this year, I believe that, a lot of the mills will be making money, but I don't believe will be making too much money. Because के आपका एक तो प्रोडक्शन कम है और दूसरा ये कि आपके प्राइस इनपुट कॉस्ट भी आपके बहुत बढ़ गए, ठीक है ना। इस वजह से मुझे लगता नहीं है कि बहुत कोई फायदा होगा। दो चार मिलों को अगर समझो कि ज्यादा फायदा हो गया जिन्होंने स्टॉक को रिटेन किया हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज मोस्ट मिल्स हैव कमिटेड सेल्स because we had thought in the beginning that the cane is going to be a bumper this year. And because of lower yields and lower recovery, the scenarios have taken a U-turn. अच्छा, Fair इसमें enough, sir. इसमें एक चीज ऐड कर लो फिगर को। जो आप प्रोडक्शन पूछ रहे थे, तो पंजाब का जो शेयर होता है टोटल पाकिस्तान की प्रोडक्शन में, वो तकरीबन 64 से 66% होता है। सिंध का 30 से 32% होता है, और केपी का 5 to 6% होता है टोटल कंट्री प्रोडक्शन। Right, sir. Thank you so much. Next is Mr. Akil Abdul Razak. Ask. Assalamualaikum. Walaikum salam. Sir, I have 3-4 questions. First of all, sir, my question is related to आपने यूनिकॉल के बारे में सर कुछ भी नहीं बताया इस ब्रीफिंग के अंदर में, थोड़ा इसके बारे में बता दें। और सेकेंडली सर, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एट द करंट शुगर कैन प्राइसेस आपका। और सर तीसरा क्वेश्चन सर, आपका फ्यूल मिक्स, जैसे कि आपने कहा कि 600 किलोवाट का आप सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं जो कि बढ़ के 850 के करीब पहुंच जाएगा किलोवाट पे, तो एक्चुअली फ्यूल मिक्स आपका क्या हो जाएगा, ये भी बता दें। पहली चीज आपने पूछी यूनिकॉर्न के बारे में। Yes. जी जी। यूनिकॉर्न this was second year that Unicorn sugar mill worked for the whole season. Last year was our first year, this is our second year. So Unicorn sugar will produce about 58,000 tons of sugar. ठीक है ना, वहाँ की cost is under control, alhamdulillah, because the area is very rich in cane. So we believe that sugar section of Unicorn will do better compared to distillery. डिस्टिलरी के अंदर जो इश्यूज ये थे कि भाई बेसिकली आपका एथेनॉल के प्राइसेस जो है वो काफी घट गए बिकॉज ऑफ कॉर्न का जो क्रॉप था उसके प्राइसेस घट गए, जिसकी वजह से एथेनॉल को एक कैप लग गया। दूसरी बात ये थी कि यूरोप के अंदर जो गैस के प्राइसेस इतने बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर एंड आफ्टर ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, तो वो अभी जो गैस के प्राइसेस हैं यूरोप के अंदर वो वर डाउन टू प्री कोविड लेवल्स। So a lot of the distilleries which had shut down in Europe are cranking full capacity right now, so the availability is there, and the prices were at about $700. ठीक है ना। तो और उसके अलावा जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सारा EFS विड्रॉ कर लिया, एक्सपोर्ट कंपनीज के जो लोअर रेट की फाइनेंसिंग मिलती थी वो सब चली गई 22% पे, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। और दूसरी बात थी जो शुगर के लिए बैलेंस शीट के लिए हमने जो डेट लिया था उसके ऊपर भी हमारे को काफी फाइनेंशियल हिट पड़ी थी लास्ट ईयर। ये साल फाइनेंशियल चार्जेस आर लो, एथेनॉल प्राइसेस आर स्टार्टिंग टू मूव नाउ, बट हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल विल बी लेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मोलासेस बिकॉज ऑफ द लोअर केन क्रॉप। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि डिस्टिलरी विल नॉट लूज मनी, इंशाल्लाह इट विल मेक सम मनी, बट आई बिलीव शुगर विल डू बेटर देन डिस्टिलरी। तो सर प्रीवियसली ये 1 बिलियन के करीब प्रॉफिट कर लेता था या 1 बिलियन से अबव कर लेता था ओवरऑल, तो वो अब सिनारियो तो नजर नहीं आ रहा कहीं से भी ना। नहीं, मतलब अभी because of our higher financial charges, I believe we have to first try and bring down our debt level so that we are able to attain those profit levels again. But ये है कि भाई जो डाउनटर्न था वो अभी रेस्ट हो गया है and things are looking better. सही है। और सर इथेनॉल का सर ये आजकल आ रहा है कि 5% पेट्रोल में यूज़ करेंगे, वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको इन्फोर्स करवा देते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा ये रिफाइनरीज को दिया जाए कि एक्सपोर्ट ही वायबल ऑप्शन होगा।
अभी देखिए एक्सपोर्ट के अंदर जो जीएसपी प्लस का जो इशू चल रहा है ना, इफ जीएसपी प्लस इज विथड्रॉन देन आई बिलीव पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो फ्यूल मैंडेट पॉलिसी अनाउंस करें और ethanol should be mixed in the fuel, ठीक है ना, and should be consumed locally. Because after GSP plus withdrawal, your prices will not remain the same because that will attract duty. और उसका eventual जो burden आएगा वो आएगा producers के ऊपर ही. तो जब तक GSP plus नहीं है, export is viable, export is good, but अगर GSP plus आ जाता है, then the fuel mandate makes more sense. ओके। और सर आप लोगों की ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और कॉस्ट ऑफ शुगर कैन क्या होगी इस फिस्कल ईयर में देखिए, FY25? I cannot give you an exact figure because there's a range for every mill. Most likely, sugar की cost जो है ना, अब for a mill like JD, who is the by far the most efficient producer, scale भी है, गन्ने के areas भी अच्छे हैं और इनका efficiency भी अच्छी है, तो उनका अगर cost अगर 135 होगी, तो बाकी by and large majority of the mills will be between the range of let's say 145 to 160. ओके ओके। और सर इसके अलावा मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आपने यही बताया 140 मैं आप 145। 150 के लगभग मतलब कि मैं समझता हूँ कि एवरेज मिल का कॉस्ट होगी 150 to 155, ठीक है। सही सही। और सर फ्यूल मिक्स के बारे में भी अगर आप कुछ कह सकें कि आपने इसका जो फ्यूल फ्यूल मिक्स मिक्स हमारे यहाँ पे जब अभी 800 किलोवाट का जो लगाया है वो बेसिकली आपका जो ऑफ सीजन के जो एक्सपेंसेस होते हैं व्हिच वी फॉर द इलेक्ट्रिक वर्कशॉप दैट वी टेक फ्रॉम द ग्रिड, इट इज टू सप्लीमेंट दैट, क्योंकि दिन के अंदर काम होता है। आप अगर ये 50-60 रुपए वाला यूनिट अगर यूज कर रहे हो तो दैट्स द रीजन व्हाई यू पुट अप दिस थिंग एंड अदरवाइज इन ड्यूरिंग द सीजन तो बेसिकली हमारा खुद की जनरेशन होती है और उसके अंदर तो सोलर का वो नहीं होता। नेट मीटरिंग जब तक फैसिलिटी है तो ठीक है, वो जनरेट करके हम नेट मीटरिंग कर देते हैं उसको, और उसका जो एडवांटेज है एडजस्टमेंट है वो आप ऑफ सीजन में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो अभी फर्स्ट ईयर होगा कि ये चीज चलेगी, तो विल हैव ऑल द एग्जैक्ट नंबर्स एज वी गो अलोंग, बट अभी तक तो सिर्फ मेरे ख्याल से 150 किलोवाट चला है, 250 चला है। सही है सही है सही। और सर फ्यूल मिक्स बगास की तरफ ही रिलेटेड होगा, ज्यादातर बगास से ही आप इलेक्ट्रिसिटी बना We रहे only होंगे। use bagasse for our generation ना, मतलब there is आप देखें ना, अगर 33% आपका गन्ने में बगास है, तो अगर आप 6 लाख टन की क्रशिंग या 6 लाख का 1.5 करोड़ मन जब गन्ना क्रश करते हैं, तो हमारा बगास जो आता है वो आता है तकरीबन 5 लाख टन बगास प्रोड्यूस होता है। 5 लाख में से 50,000 टन बच जाता है, बाकी 90% गेट्स यूज्ड अप फॉर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एनीवेज। इसमें ऐड करूंगा, जो 2 साल पहले एफएससी और विकेटी इंस्टॉल किया है, इस पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, उसकी वजह से भी बगास की सेल अच्छी हो रही है। इससे पहले हमारी बगास सेल लेवल होती थी 2% के आसपास होती है, अब ये मोर देन 5% या 6% के पास पहुंच चुकी है। तो लास्ट ईयर तकरीबन हमने मोर देन 50,000 बगाइस बचाई थी जो हमने सेल की थी। तो आप ये समझ लें कि अब ये रेशो तकरीबन 6% के आसपास है। इससे पहले बिफोर ये हमने इंस्टॉल नहीं किया था तो ये 2% के आसपास होता था, और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। दूसरा है कि बगास की जो सेलिंग प्राइस है जो लास्ट टाइम थी, वो इस दफा इसकी डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस भी डबल हो चुकी है इसका। एक अच्छा रेवेन्यू यहाँ से है एक्सपेक्टेड। और दूसरा ये कि अगर मिल फुल कैपेसिटी पे चलती है ना, तो बगास की जो क्वांटम जो सेविंग है वो 5-6% से बढ़ के 8-9% भी हो जाती है। लेकिन इस सीजन सिंस लैक ऑफ शुगर केन सप्लाई रहा, तो दैट्स द रीजन व्हाई इट इज एट अबाउट 5%। हम्म। सर बस लास्ट क्वेश्चन है सर कि सर जैसे कि IMF के प्रोग्राम के अंडर में है और इस दफ़ा शुगर केन की प्राइजेस भी और वीट की भी सपोर्ट प्राइजेस नहीं गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो नेक्स्ट ईयर आप फिर क्या, अगर इसी तरह सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं होती है तो नेक्स्ट ईयर आप शुगर केन की प्रोडक्शन हमारी कहाँ देख रहे हैं? देखिए, अभी तो आपको इस मुल्क में पंजाब इज द मेजर प्रोविंस। पंजाब के अंदर फरवरी और मार्च एंड मिड अप्रैल तक गन्ना लगता है। अब जब उनकी प्लांटेशन होगी तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन आफ्टर अ मंथ एंड हाफ टू टेल यू कि भाई व्हाट इज द प्लांटेशन फिगर्स लुकिंग लाइक। तो अभी तो प्लांटेशन हो रही है, जो ग्रोवर्स को अच्छे पैसे मिले हैं, तो वी आर होपफुल दैट प्लांटेशन अच्छी होगी। बट इन माय पर्सनल ओपिनियन आई जस्ट बिलीव दैट ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ 5-10% गन्ना बढ़ जाएगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। अगर वो बिकॉज के शुरू में गन्ने के रेट्स कम थे,
अब जब रेट्स बेहतर हुए तो पंजाब विल प्रॉब्ली प्लांट मोर। सिंध के अंदर 80-90% गन्ना जो है वो ऑलरेडी ऑटम में लगता है, विच इज व्हाट सितंबर अक्टूबर, तो वो ऑलरेडी लग चुका है। तो हम अपने एरिया की बात कर सकता हूँ, तो हमारे एरिया के अंदर तकरीबन 10% लास्ट ईयर से एकड़ ज्यादा नजर आ रहा है। सही है, ठीक है सर, थैंक यू सर। Next, Mr. Yusuf Farooq, J Securities. सर इस साल आपकी बातों से भी यही लग रहा है, और बाकी मिल्स की जो ब्रीफिंग्स हमने सुनी है उससे भी यही लग रहा है कि पंजाब हैज एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ केन कॉस्ट। सर हमने पहले भी शॉर्टेजेस में देखा है कि पहले जब भी शॉर्टेज होती थी तो सिंध में प्राइस ज्यादा खिंच जाती है और पंजाब में इतनी नहीं बढ़ती है। तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन इयर्स ऑफ ओवर सप्लाई? क्या पंजाब में कॉस्ट सिंध से परमानेंटली ही नीचे रहेगी अब? What's your view on what's going to happen in the market going forward? क्या पंजाब में ओवर सप्लाई में भी नीचे होगी और सिंध में ऊपर होगी, या किसी वक्त सिंध में कॉस्ट नीचे भी जा सकती है पंजाब से? क्योंकि ये तो एक परमानेंट डिसएडवांटेज ना हो जाए 10-15 रुपए केजी का। नहीं, आप अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो पंजाब के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो पहले जमाने में ज्यादा होती थी, बट रिकवरीज वर लेस। अभी तो पंजाब की प्रोडक्शन कॉस्ट है कंपेयर टू सिंध इज गोइंग टू बी लोअर परपेचुअली, बिकॉज दे हैव गॉट अ लार्जर एरिया अंडर केन, उनकी वैरायटीज इंप्रूव हुई है, उनकी रिकवरीज इंप्रूव हुई है, ठीक है ना, वहाँ क्वांटम ज्यादा अवेलेबल है, वहाँ मिल्स की साइज बड़ी है, ठीक है ना, तो उनको स्केल का एडवांटेज है। सिंध के अंदर तो पानी की वजह से और ये दूसरे क्रॉप्स की अवेलेबिलिटी की वजह से और जो दूसरे कम्पीटिंग क्रॉप्स है वो जो रिटर्न जो दे रहे हैं फार्मर को, तो केन के ऊपर काफी प्रेशर इस समय। तो पंजाब में assessment is correct that this is perpetual. I believe so, yeah, that's how I see it, yes. Sir, thank you. I believe there are no more questions, so we will conclude. Thank you, gentlemen. There are no, I think, other questions. We value your insight and feedback. We once again appreciate your time and commitment and close this session. ठीक, Here, another question. थैंक यू सर। Sir, सर thank you. बगास पे मुझे पूछना था। बगास पे आपने मेंशन किया कि वो 30 से 33% होता है आपका ओवरऑल केन प्रोडक्शन का। केन प्रोडक्शन आई बिलीव 6-6.5 लाख थी, तो क्या बगास प्रोडक्शन 2 लाख टन्स के करीब थी और इसमें आपने मेंशन किया कि 50 से 60 हज़ार आपने बेचा था, तो कैन वी एज्यूम कि 1.5 लाख इंटरनली कंज्यूम था, या नंबर्स में कुछ गलत कह रहा हूँ और एक्चुअल में कुछ डिफरेंट है? उस पर थोड़ा क्लैरिफाई कर दें प्लीज। देखिए लास्ट ईयर जो है हमने 8 लाख टन गन्ना क्रश किया था, 800,000, इसका 0.33 ले लें तो 264,000 tons of bagasse was produced, 50,000 ton was sold, and the remaining 210,000 tons was used for power generation. राइट। अच्छा, और सर आपने बताया कि इस साल जो बगास की सेल होगी वो ज़्यादा होगी, और आपने कहा बगास की प्राइस भी डबल हो गई है, तो बगास की प्राइस आप बता सकते हैं कितनी पहले थी और उससे कितनी डबल हो गई है? बगास की प्रोडक्शन इस साल डबल नहीं होगी क्योंकि अब हमारी क्रशिंग ही कम हुई है ना। अभी हमारी क्रशिंग हुई है 6 लाख कुछ हुई है, और बगास की जो परसेंटेज ऑफ सेविंग है व्हेन यू आर क्रशिंग फुल इट्स अबाउट 8.5%, दिस साल इज अराउंड 5%। क्रशिंग भी कम है, बगास की सेविंग भी कम है। लास्ट ईयर हमने 50 टन बेची थी, इस साल हमने 20-22 25,000 टन बेची हुई। तो लेकिन प्राइस जहाँ तक लास्ट ईयर 4,000 रुपया टन था, अब जाके बगास का प्राइस हो गया 9-10 हजार। Production come, pricing the advantages. ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। Any other one? No, we close this session. Allah Hafiz.